शौक को दिल में जलाए रखना, मतलब समझ आ जाए तो मुझे भी समझा देना. With this, ladies and gentlemen, I would like to introduce the producer of the film. BBR Films Private Limited is an extension of BBR Publications USA, founded by Purnima Mirji, to fulfill her passion of reaching out to children with books written specially for them. Despite having lived in the US for last 10 to 12 years, she chose to make the film Jeena Isi Ka Naam Hai, which is close to Indian roots. And despite having been shot across the globe, I would say she's also close to the Indian roots. I present to you Purnima Mead. Can we have you on stage, please? Can we have a mic as well for her? अरे मैं हूं ना यहाँ पे, इनफ रोशनी है, मुस्कुराऊं, उजाला हो जाएगा. Ooh. Yeah. Can we have one more mic, please? वैसे तो मुझे माइक की जरूरत नहीं है, मैं टीचर हूँ ना, तो मेरी तो आवाज ही है. Ay, hey. मेरी तो टीचर वाली आवाज है. So till the time we are getting the mic, anyway, मैं पूछना तो आपसे यही चाहती हूँ कि इतने साल USA में होने के बाद में, now that you are back and मूवी भी आपने ऐसी बनाई है जो कि इतनी ज़्यादा इंडियन है, फील उसका इतना होमली है. How homesick were you and how homely are you feeling finally? What is the feeling? Hello. First of all, I must say good afternoon to each one of you who are here. You took your time off from your precious moments, whatever you were doing, and you're here. I will try my best to speak in Hindi. Sure. And if I don't, she will help me. She'll prompt me. Urdu, no. We have a master right there. He's not, I'll get an F right now. So the question was, how homely did I feel? Yes. And did I feel at home? Yes. Honest to God, let me tell you one thing. I could not have achieved this. This would just have been like a dream and kept there somewhere in my head if I didn't have a fantastic cast and crew, and of course my two strong men, my husband and Keshav Pandure. They never let me fall. So, all due regards to all of you here, I did feel homely. I was at home. I was very emotional when we were making this movie and we were traveling place to place. हम कहाँ नहीं गए जब हमने we were trying to find the locations. हम हर जगह गए, and each place was very precious to me. Each time when I saw that location, मेरे तो आँख में आंसू आ जाने लगते थे, because I was like, oh, I want to go back home. I want to go to India back home. But then again, I said, what can I show the audience here in India and of course worldwide how important it is to always be connected to our roots. So I do not want to forget from where I came, yet I do not want to lose the path where I'm going. Wow, that's wonderful. Thank you so much. You know, I would also like to mention the fact that if anybody, especially we Indians, whenever we go abroad and we settle there, we stay there for 10, 12 years, we only come back to shoot the slums for some reason. I don't know what is the attraction, but then हम आते और आके हमें झुग्गी झोपड़ी दिखते हैं, जाकर के हम वही shoot करते हैं. But then this, I think you have shown the cultural side of India, the beautiful side of India. So thank you so much for actually taking this forward. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाएं for पूर्णिमा जी. Along with this, आगे बढ़ते हुए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी उस शख्स को जिन्होंने कि इस मूवी को दिशा दी, यानी कि डायरेक्शन दिया. I would like to introduce Mr. Keshav Pandure. Having done his filmmaking and cinematography course from Toronto, Keshav went on to work in various capacities. He also won international awards and accolades for editing for his film Kiss Me Already. After experimenting with digital platforms and 3D stereography and directing short films, documentaries, etc., he turned around, came back to his passion, which is Bollywood, with his maiden venture, that is Jeena Isi Ka Naam Hai. I present to you Mr. Keshav. Zordar taaliya ho jaye for the director himself. Can we have the mic again? मैं लाइट ले लेता हूँ अपनी तरफ से. मैं देख लेता हूँ लाइट मुझे कहाँ प्रॉपर मिल रही है. अरे बिल्कुल. आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा होगा यहाँ पर. एपरेचर थोड़ा बढ़ा दें सर. Can we do something about the light? Okay. Or should we continue?
चलिए लाइट का जब तक मैंने सुना नीचे से कि लाइट आ रही है और बिजली की गति से लाइट चलनी चाहिए लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की गति से आ नहीं रही है। आई बिलीव कि विद इन 3 मिनट 4 मिनट्स इससे पहले कि हमारी स्टार कास्ट ऊपर आएगी लाइट आ चुकी होगी। और वैसे भी हम तो बिहाइंड द सीन वाले हैं, हमें बिना लाइट के भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, शायद आपको अच्छा लगे। तो क्या बात है, क्या बात है। मैन For that बिहाइंड द gesture. कैमरा, बिहाइंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो मैं हमारी कास्ट एंड क्रू, हमारे डीओपी रूपम, हमारी पूरी कास्ट, तपन जी, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ में यहाँ तक हमारा साथ दिया उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्णिमा जी स्पेशली, अमृता, दे ऑल वर स्टैंडिंग विथ मी इन वॉट जो भी कठिनाइयाँ आती रहीं। और जीना इसी का नाम है। हमारी फिल्म को बनाते हुए लाख कठिनाइयाँ आई, लाख तरह की प्रॉब्लम्स आई, बट वी सॉल्व, वी ओवरकम एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट वी आर शोइंग इन जीना इसी का नाम है। कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी परेशानियाँ आए, उसको हम पार करते हुए आगे बढ़े एंड दैट्स व्हाट वी कॉल विनर्स। सो दिस फिल्म इज अबाउट विनर्स, दिस फिल्म इज अबाउट, इट्स एन इंस्पिरेशनल फिल्म फॉर टुडेज यूथ कि जिसको देख के हम कह सकें कि जीना इसी का नाम है। फिल्म के स्टोरी के ऊपर बात करने का समय आज थोड़ा कम है, आज हम म्यूज़िक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स म्यूज़िक कि इस फिल्म के अंदर हमारे पास में 6 अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और उनके बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स हमने इसमें रखे हैं जो आप अभी तक सुन रहे थे। जीना इसी का नाम है हमारा टाइटल सॉन्ग आपने सुना जो के जी ने गाया है। उसके अलावा अंकित तिवारी का गाना है जो आपने सुना, मुझको तेरे इश्क में भिगो दे, हैरी आनंद जी का कंपोज किया हुआ है। तो ये सारे गानों के ऊपर बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक करके एक बार हम गानों को देख लें। जब तक लाइट मेरे ख्याल से थोड़ी बेटर हुई है और लाइट जब तक बेटर हो, आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू few of our songs here with visuals. Meanwhile, light can be arranged and then we can have our star cast on. I'd like to thank again Purnima ji for being there, for giving me all support and money at the same time. Thank you. क्या बात है। तो दीपक अग्रवाल जी और के जी ने गाना गाया है। दीपक अग्रवाल एंड टीम अगर यहाँ हैं तो प्लीज़ मंच पे आ जाएं। दीपक अग्रवाल। उसके बाद में हमारा गाना था लट्टू, ओंकार मिन्हास। ओंकार जी आप प्लीज़ मंच पे आ जाएं। कागज़ की ज़िंदगी, रानी हजारिका, यूवी, जो भी यहाँ पर मंच पे हमारे साथ हैं सिंगर्स एंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऊपर आ जाएं। मुझको तेरे इश्क में भिगो दे, लव एंथम ऑफ द ईयर, आई लाइक टू कॉल मिस्टर हैरी आनंद ऑन स्टेज। कुंवर जुनेजा प्लीज़ मंच पे आ जाएं। इरादे अगेन ओंकार मिन्हास जो हमारे साथ ऑलरेडी स्टेज पे हैं। कबूल है जो गाना हमारा कॉलेज एंथम, आई लाइक टू कॉल विश्व मुखर्जी ऑन स्टेज। और सोचती हूँ आसमां का रंग में बदल दूँ जो कि अभी पूरा VFX ग्राफिक्स में है, जिसका ऑडियो आपने बाहर सुना। मैं बुलाना चाहूँगा स्वाति और हमारे भाई जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सिद्धांत, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। सिद्धांत। ये हमारी पूरी संगीत टीम है, म्यूजिकल टीम हमारे यहाँ साथ में है। सर आप चाहेंगे कि आप किसी गाने की 2 लाइनें गुनगुनाने को कहें? ज़रूर, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हैरी भाई किधर हैं? हैरी भाई, प्लीज़ प्लीज़। ओंकार भाई, उसमें रानी हैं, उसमें हैं। बेस ज़्यादा है, इसमें ट्रेबल ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल I welcome everybody present here and I'm very thankful to the team, Keshav ji, for giving me this chance to compose music for this film, beautiful film. And Mujhko Tere Ishq Mein Bhiga De, we've got a good response on YouTube and everybody is liking the song and I don't want to say much, everybody is liking the song sir and I thank you and please media से request है, मैं बहुत सालों के बाद कम बैक कर रहा हूँ। मैंने सारी लाइफ आइटम गर्ल्स लॉन्च करी हैं पहले, पर अभी कुछ मेलोडी म्यूज़िक करने का मौका मिला है एंड आई रियली नीड सपोर्ट ऑफ मीडिया एंड आई एम डूइंग प्लेंटी ऑफ अदर फिल्म्स एज वेल। सो प्लीज़ मेक दिस सॉन्ग एंड राइट अबाउट गुड अबाउट दिस सॉन्ग इफ़ यू लाइक द सॉन्ग।
और फिल्म के बारे में जैसा कि आपने ट्रेलर्स देखे, इट्स आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, स्टोरी लाइन इज़ अमेजिंग एंड आई विश यू गुड लक सर. थैंक यू. ओंकार भाई. हेलो. एक जीना इसी का नाम है, एक तो के जी ने गाया है, तो एक और क्लब वर्जन किया है, उसकी कुछ 4 लाइन्स मैं सुना रहा हूँ आपको, जो अपने रानी जी और यूबी ने गाई हैं. कागज सी है जिंदगी, भीगी तो समझो गई, बस चल दे कुछ और कदम, खुशियां खड़ी हैं यहीं, जो खो दिया, जो मिल रहा है वो ले, कल सुबह फिर होनी है, कुछ पल की ही शाम है, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम है. गड़बे से गम के जहर को शरबत के जैसे चढ़ा ले, रूठी सी इस जिंदगी को कैसे भी कर बस मना ले, बिकते नहीं रोते चेहरे दुनिया के बाजार में, हंसने की आदत तो डालो, फिर देखो क्या दाम है, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम है. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, the whole music team. With this, I would also like to invite on stage rest of the cast and crew members. But then before that, I would please request Purnima Meerji and Stanton Meerji to escort Prem Ji onto stage. Can we please do that? सर एक बार जीना इसी का नाम है तो बोलना बनता है. जीना इसी का नाम है. क्या बात है, you heard it from the man himself. Sir, center stage please. हम we'll move towards the unveiling of the album. So थोड़ा सा हम लोग shift हो सकते हैं please sir. आइए. Yes. Along with this, I would also like to call on stage Mr. Arbaz Khan, Mr. Ashutosh Rana, Manjari Fadnis, Himansh. Please, can we have all of you on stage? Purnima ji. Stanton, please. Please, center stage. Sir, please. Please, sir. Can we have the album box for the unveiling of the album, please? And the light, yes. With all the excitement and the courage and the strength, we present to you, ladies and gentlemen, all you lovely people present here this afternoon, we present to you the music of Jeena Isi Ka Naam Hai, out now. Take all the pictures that you can, because this is the moment that we were waiting for. This is what we have all gathered here for, the music of Jeena Isi Ka Naam Hai. Wonderful music, romantic, dramatic, soulful, beautiful. Once again.
Thank you so much. Thank you so much, photographers. Thank you so much for those pictures. I hope you guys will print them. I would also like to thank the whole music team. Thank you so much. And I would like all the actors and the producer and the director of the film to please stay back on stage. Purnima ji. Thank you so much. Wonderful music team. The directors, music directors, the singers, the musicians, the technicians. Thank you so much. All right, thank you so much. And I would like all of you guys to please be a little patient because now we are opening the question and answer round for the media. So if you have any questions, if you want to know जीना किस चीज़ का नाम है, अगर आप इनसे ज़िंदगी जीने के tips लेना चाहते हैं, these guys know it all, they figured it out. So over to you, media members. You can ask all the questions that you want. Can we have the mic rolling in the media, please? Do you have the mic already? Can we have the mic rolling? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच मीडिया पीपल एंड हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं. हमारा म्यूज़िक लॉन्च है आज, हमारा सबसे पहला फिल्म का मतलब प्रमोशनल प्लान जो है वो उसमें हमारा म्यूज़िक लॉन्च है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आपका जो सवाल है वो है एक बहुत खूबसूरत शायरी है इसके अंदर, और इसके अंदर जितने जो भी वर्ड्स हैं वो उससे मतलब आई काइंड रिलेट टू एंड मैं उसको मतलब अंडरस्टैंड करता हूँ, महसूस करता हूँ और उससे रिलेट करता हूँ. तो या सो आई गेस दैट्स व्हाट इट इज. आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे, व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ द टाइम व्हेन दे अप्रोच यू फॉर दिस रोल, एंड जो आपका किरदार नजर आ रहा है शायद सबसे ज्यादा पावरफुल आपका किरदार नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जिस तरह से आपका चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे आपकी डायलॉग डिलीवरी हो, यू नोन फॉर योर वर्क सर. स्टिल वांट टू नो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ और व्हाई यू सेड यस टू द फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ इट. देखिए, शेर से लड़ना था. अच्छा. हाँ, सबसे अच्छा. बड़ा जो हाँ कहने उसमें जब इन्होंने कहा कि भैया शेर से लड़ना है, तो मैंने कहा बस अब कहानी बाद में सुनेंगे, पहले शेर से लड़ेंगे. दैट्स ऑल. मिस्टर नटवर लाल, एक फिल्म बच्चन साहब ने की थी, कहीं वो भी लड़े थे, कुछ यादें ताज़ा हुई. और जी निश्चित रूप से, क्योंकि इन लोगों को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं. जैसे कर्तव्य में धर्म जी की एक जो टाइगर फाइट थी, नटवर लाल में अमिताभ बच्चन साहब की जो टाइगर फाइट थी, और मुझे लगा कि इंडियन स्क्रीन के ऊपर एक अरसे के बाद किसी आदमी को शेर से भिड़वाया जा रहा है और उसमें शेर परास्त हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए. तो मैंने केशव बनर्जी से कहा कि सर कहानी वहानी एक तरफ गई, लेकिन सबसे पहले ये टाइगर फाइट होगी, और वो टाइगर फाइट हुई, और उसका परिणाम ये है कि बहुत अद्भुत और बहुत कमाल तरीके से केशव ने उस पूरी चीज़ को शूट किया. क्योंकि ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है कि आप शेर से लड़ रहे हैं, लेकिन जब शेर के सामने खड़े होते हैं आप, तो आपकी पैंट गीली हो जाती है. इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ खड़े भी रहना आपको कहीं ना कहीं जड़ कर देता है. आपको हिलने पे, वो सिर्फ अगर आंख उठा के देख भी लेता है आपकी तरफ हल्का सा, तो आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, और आप वहाँ से आप वहीं जड़ हो जाते हैं पेड़ के जैसे. तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से उस तमाम चीज़ को शूट किया, और बहुत मुझे इस बात का गर्व है, फ़क्र है, और इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद
अगर किसी इंडियन स्क्रीन पे किसी भारतीय फिल्म अभिनेता को शेर के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला, और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नॉर्मल फाइट नहीं है, उसका जो कॉम्बैट है दोनों का, वो भी बड़ा रोमांचक तरीके से हमारे यहाँ एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास भाई, उन्होंने बहुत रोमांचक तरीके से उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया है, और मैं बहुत आनंदित हूँ और भाग्यशाली हूँ। प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सेंसर कहीं उसके ऊपर कैंची ना चला दे। ओके मंजरी, आपसे और हिमांश, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, कितना क्या सीखा आपने? इट्स ओके एज वेल, यू कैन हियर मी, आपको मैं सुनाई तो दे रहा हूँ। आप दोनों ने इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं, आशुतोष डजंट नीड इंट्रोडक्शन, प्रेम साहब अपने आप में एक लीजेंड है, अरबाज अपने आप में एक शख्सियत है। क्या सीखने को मिला इन तीनों दिग्गज से आप दोनों को? I'll start with Himansh. And Himansh, do you think it's a good start after your previous work? Good afternoon, everyone. And firstly, thank you so much for gracing us with your presence here. And yeah, I feel इतने बड़े star cast और इतने बड़े superstars. For me, I'm a newcomer. और इतना बड़ा chance मिला कि same screen पे, if I can share my screen space with them. Nothing like it. My mom sitting here, I feel she must be proud right now that I'm amongst one of her favorite actors here. So this makes me feel out of the world. Manjari, your take on that? I want to thank Keshav first for giving me this opportunity to work with actors as talented as Ashutosh sir, Supriya ma'am, Arbaz sir, Prem sir. It's been a great opportunity for me to learn from them. मैं बचपन में देखा था आशुतोष सर को, मैं बहुत like I used to be तो जब मैंने उनके साथ काम करना था, मैं बहुत डरी हुई थी because I was like, you know, I had seen him in Dushman and I had seen him in like, what is that film, Sangharsh. So I was so scared. I was like, okay. And but when I actually met him, he was so warm. He was such a nice person. Not saying it because he's sitting here, but उन्होंने बहुत encourage किया because इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना भी, you know, it's a little unnerving for actors, you know, because you want to match up to their performance. And ऐसा बहुत बार हुआ कि आशुतोष सर ने हमें थोड़ी टिप्स दी अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए. एंड सेम विद सुप्रिया मैम ऑल्सो, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ इन किस किस को प्यार करूँ, एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी. And so yeah, I just feel extremely lucky and very grateful. So thank you Keshav and thank you Purnima for having me this film. प्रेम जी, मेरा सवाल आपसे है, संगीत की आज बात हो रही है, म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और एक अलग तरह का म्यूजिक, यू नो, मैं अगर आपकी राय जानना चाहूँ, क्योंकि आपने संगीत इतने सालों से इंडस्ट्री में संगीत को समझते हैं, तो इस फिल्म के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रेम साहब? आप कितने मुतमईन हैं आप इस फिल्म के संगीत से? सर आपसे, प्रेम साहब आपसे, कितने मुतमईन हैं आप फिल्म के संगीत से, म्यूजिक से? बहुत ही मुतमईन हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, और डिफरेंट वैरायटी के सॉन्ग्स हैं और बड़े खूबसूरती से इसको निभाया गया है. माय कंग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हु हैज बीन वेरी जनरस अबाउट दिस पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स इन अ लैविश मैनर. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया. अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने. तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है. माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू सो मच. About the most challenging part while working on this film? Pardon? Sir, this is for Arbaz sir. Arbaz sir, what was the most challenging part while working on this film? Well, one very challenging part was, I think, the weather we had to combat, because when we were in Maryland, we were supposed to shoot in snow. If you see, the whole film has been shot beautifully, and there was a little part in the film when we were shooting in America, and it was, what, I think -8 degrees. 11. Minus 11. Ask me. With wind chill it was And -15. I still had jackets and like a suit, but you know, Manjri I did not have that, so I know better. So that was a bit of a challenging experience. That was my first time. I've just recently done a film in Arosa where it was like -18 degrees. So I got used to it, but that was my first experience. Apart from that, I think
First and foremost, Keshav ji, thank you very much for having me on this film. You're a wonderful person, a very Thank good you, sir. director, and so hardworking and so passionate about your filmmaking. Purnima ji and Stan, thank you very much for making such a beautiful film and giving Keshav the entire freedom to shoot this film the way he saw it and envisaged it. And the beauty about being a part of this film is that not only is it a lovely love story and a beautifully short film, it's the people that we worked with, all of us sitting on this stage right now, were very good. Premji, thank you very much. I had an opportunity to work with you. It's wonderful experience. So I think the whole mood on this film and the whole kind of experience on this film was beautiful. And I would like to thank Keshav ji and Purnima ji for it. Thank you very much. सर के लिए मैं बोलूँगा जो शायरी इसमें चली थी सर के ऊपर, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, अपने इश्क की तकदीर थोड़ी कम ही रही, कई बार मनाया खुद को लेकिन इन हाथों की लकीरें शायद कुछ कमी रही। बीच की लाइन भूल गया। मेरी फीलिंग्स इस फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी है। बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन आई सॉ द रिजल्ट टुडे एंड दिस इज विद दिस स्टार कास्ट ऑल ऑफ अस, दिस फिल्म will definitely make big news and it will create a trend for the future films to come. तो मेरी सबसे यही है, एक तजुर्बा यही है कि ये फिल्म जो है बड़े तरीके से शूट की गई है। बिहाइंड द कैमरा जो DOP हमारे जो हैं, जो सेट डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया है। I've never seen Arbaz so handsome on the screen. That's right. He looks really dashing, and That's right. this picture is a great break for him. I wish him all the best. God bless you. Take care. फेसबुक पे हमारे जो कमेंट्स हैं वो इतने फ्लूड हो जाते हैं कि कई बार कर्फ्यू हो जाता है कि अब उसको मतलब हम कमेंट्स को पढ़े कैसे अरबाज सर के लिए और चोपड़ा सर के लिए, प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है, अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल ना रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल ना रहा। वाह 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 वाह।